DNA, full form of DNA is deoxy Ribose nucleic acid. Ribonucleic acid. ribose or ribo, both are same thing, and it is ribose Ribose nucleic acid. nucleic acid. Okay, so here sugar will be deoxyribose sugar, and here ribose sugar will be there, ribose sugar. And what is the difference between deoxyribose and ribose? Already in the section of carbohydrate I have told you. This is carbon number 1, this is carbon number 2, and this is carbon number 3. ओके 3 पे OH ऊपर नहीं होता. दिस इज कार्बन नंबर 4 and carbon number 4 CH2OH is there, that is 5 carbon is there. Okay, so if I will talk deoxy, so I will remove oxygen from the carbon number 2. Okay, only H will be there. What student? Only H, this one H will be there. If I will take OH, add this carbon, this one OH, and rest will be seen, everything will be seen, so it will be ribose sugar. This is the major difference between DNA and RNA on the basis of sugar molecule. Okay, so first of all we will discuss three things. First is nitrogen base pair. Nitrogen base pair, already all these things I have told you, that's why I am telling in the fast way. Second is sugar, and third is phosphate. Okay, so student, DNA and RNA, these are made by these three components: nitrogen base pair, sugar, and phosphate. Okay, all these three components will be responsible for the formation of RNA और DNA. ठीक है, अब नाइट्रोजन के बेस पेयर जो हैं, these are classified into two categories. First is purine. ये आपको कल मैंने आपको बताए थे कि नहीं बताए थे कि जो हमारे नाइट्रोजन के बेस पेयर हैं ये हमारे, फर्स्ट इज प्यूरिन, सेकंड इज pyrimidine, pyrimidine, MIDINES. Okay, in purine only two nitrogen base pairs are there, and these are adenine, second is guanine, you will keep in mind guanine. Okay, and in pyrimidine 3 thymine, cytosine, and uracil. ओके, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है. ये जो नाइट्रोजन के बेस पेयर हैं ये दो कैटेगरी में. प्यूरिन क्या होती है, इसमें दो रिंग होती हैं. पायरिमिडिन जो होते हैं ये सिंपल रिंग होती है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है. सुगर, राइबोस सुगर as well as deoxy ribose sugar. Phosphate, generally it is phosphoric acid, but in ionic form you can write like this. These three components will be responsible for the formation of DNA and RNA. Okay, so next topic we will study, that topic is nucleoside. So what is nucleoside? It is the mixture of nitrogen base plus sugar. For example, this is the sugar. कौन सी सुगर है स्टूडेंट? ये ribose sugar. This is ribose sugar, because at carbon number 2 I am taking OH. If at carbon number 2 I will take only H, then it will be deoxyribose, or you can say 2-deoxyribose, or you can say student 2-deoxyribose. Okay, so what will happen if I will react
here thymine, this one T, it is represented as C, it is represented as U, it will be represented as G, and it will be represented as A. Okay, so if I will attach this thymine with this oxygen, so H will go with some other group of thymine. Okay, so this will be the final structure, or directly you can attach like this कि भाई इसका पूरा OH थाइमीन के H के साथ चला गया, मतलब H2O वहां से निकलकर चला गया, तो ये आपका न्यूक्लियोसाइड बन गया। हियर सपोज मैं ले रहा हूं यूरेसिल, मैं यहां यूरेसिल ले लेता हूं, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा अभी, और यहां थाइमिन ले रहा हूं, ठीक है। तो थाइमिन कौन से कार्बन से, मतलब नाइट्रोजन का जो बेस पेयर है, नाइट्रोजन का जो बेस पेयर है वो शुगर के कौन से कार्बन से लिंक होता है, फर्स्ट कार्बन से, ये ध्यान देंगे आप, फर्स्ट कार्बन से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों मिलके ये क्या बन गया, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसाइड बन गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब नाइट्रोजन का बेस और शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड है यूरेसिल का, एंड दिस इज द न्यूक्लियोसाइड ऑफ थाइमिन। क्लियर है? यू कैन टेक एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है ना, बट स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल कीप इन माइंड, रिमेंबर, क्या याद रखना है आपने, याद देखो क्या रिमेंबर याद रखेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यही है ना आपके पास, ठीक है। और दो शुगर है आपके पास, फर्स्ट इज डिऑक्सी राइबोज एंड राइबोज शुगर। तो देखो एडेनिन जो है वो इसके साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी जुड़ सकता है। ग्वानिन कैन लिंक विद डिऑक्सीराइबोज एज वेल एज राइबोज, दोनों के साथ जुड़ सकता है। बट थाइमिन इट विल इंटरेक्ट विद ओनली डिऑक्सीराइबोज, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। साइटोसिन अगेन इट कैन कंबाइन विद डिऑक्सीराइबोज as well as ribose, but uracil it will combine with only ribose, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या एक तो ये वाला पार्ट जो सिंगल सिंगल वाले पार्ट है ये आपने दोनों ध्यान रखने हैं। ठीक है, कि थाइमिन सिर्फ किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कौन सी शुगर के साथ, deoxyribose, and uracil will combine with only ribose sugar। ये चीज याद रहेगी कि नहीं रहेगी? इसलिए मैंने आपको देखो यहां पर ये स्पेशल बताया कि यूरेसिल किसके साथ कंबाइन कर रहा है, राइबोज शुगर के साथ, और थाइमिन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, डीऑक्सीराइबोज के साथ। क्लियर है? ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध लो, आपने याद रखना ही रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? अब जरा यहां आना, एक बात बताना, मैंने डिफरेंस में क्या बताया था आपको, डीएनए क्या होते हैं, जिसमें कौन सी शुगर होगी, Deoxyribose. और मैंने अभी क्या बताया कि डीऑक्सीराइबोज के साथ कौन जुड़ सकता है, डीऑक्सीराइबोज के साथ थाइमिन, Thymine. और कौन कौन जुड़ सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, बस ये चार जुड़ सकते हैं ना डीएनए के साथ। इधर लिख लो अब, डीएनए के साथ कौन कौन जुड़ सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। क्लियर है? uracil we will not consider here because uracil will combine with ribose sugar only, and we know that DNA की फुल फॉर्म ही क्या है, deoxyribonucleic acid, mean it will contain deoxyribose sugar, and we know that uracil does not interact with the deoxyribose sugar। वो मैंने आपको यहाँ बताया, देखो अभी यूरेसिल सिर्फ किससे जुड़ेगा, राइबोज शुगर से जुड़ेगा। तो डीएनए में ये चार बेस पेयर होंगे। अब आरएनए में आ जाओ, आरएनए में आपको मैंने क्या बताया, कौन सी शुगर होती है, आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है। आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोज। तो अब देख लेते हैं राइबोज के साथ कौन कौन जुड़ रहा है, एडेनिन जुड़ रहा है, ठीक है, और कौन है, ग्वानिन, ठीक है, और कौन है, साइटोसिन, ठीक है, देन और कौन है, अब यूरेसिल है, ये बात आप ध्यान देखो, थाइमिन
नहीं लेंगे। ये आपने ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी स्टूडेंट्स मैंने कि डीएनए में होगा आपका थाइमीन और आरएनए में होगा आपका यूरेसिल। क्लियर? यस सर। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड होते हैं अब नाइट्रोजन बेस और शुगर। ये क्या कहला रहा था, जल्दी बताओ, ये क्या कहला रहा था मिलके? न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में तीसरा पार्ट भी ऐड कर दो, ये आपका क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। मतलब चाहे आप यहां लिख दो, क्लियर? अरे स्टूडेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? यस सर। यस सर। यस सर। देखो यहां देखो, मैं एक यहां पर समझाता हूं आपको। Who will tell what is this? डीऑक्सीराइबोज। ये न्यूक्लियोसाइड बना है एडेनिन का। एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड बना दिया मैंने, देखो शुगर, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ओके, बट स्टूडेंट नाउ आई एम कनेक्टिंग इट विद H3PO4 also, H3PO4. Okay, so what will happen? There is a removal of water molecule. This one, this is carbon number 5. So what will be the product? What will be the product? Sugar, nitrogen base, H and H, H and OH, H and this CH2. This CH2 has connected with this oxygen, and at this oxygen P double bond O, OH and OH is there. Okay, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो आपके सामने बना है स्टूडेंट, इसको आपने समझना है। ठीक है, तो हमने यहां पर एडिनिन शुगर ली थी, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन। एडिनोसिन, ये तो इतना हिस्सा जो है, दोबारा समझो, ये जो इतना हिस्सा है, दिस इज एडिनोसिन। बट कितने फॉस्फेट है? 1 फॉस्फेट, मोनो फॉस्फेट। क्लियर? इफ यू विल टेक G, देन इट विल, अगर G लोगे तो क्या नेम हो जाएगा उसका? ग्वानिन था ना वो, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इफ यू विल टेक थाइमीन तो क्या हो जाएगा? वो TC क्या हो जाएगा? बताओ। मोनोफॉस, ठीक है ना? बट हियर आई कांट टेक यूरेसिल बिकॉज यूरेसिल विल कंबाइन विद ओनली राइबोज शुगर. So uracil, if you want to make the nucleotide of uracil,
then you need to take which sugar? Ribose sugar, this one. And this ribose sugar should be connected with phosphate group like this. ठीक है ना? तो ये क्या बन गया आपका? यूरिडीन भी बोल देते हैं इसको, मोनोफॉस्फेट। ये आपके न्यूक्लियोटाइड बन गए। समझ में आए कि नहीं आए न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? Yes, sir. Is it clear, student? Yes, sir. किसी को कोई बात है, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। नो डाउट? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट। नेक्स्ट विल बी कि भाई अब जरा इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट। अब मुझे बताएंगे ये क्या बना रहा हूं मैं। This is adenosine monophosphate. I am connecting this adenosine monophosphate with another molecule. So what will be? What will be its name? Student, what will be its name? एडिनोसिन कितने फॉस्फेट? Diphosphate. डाइफॉस्फेट। चलिए अब मान लेता हूं मैं एक और फॉस्फेट के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूं। कहीं भी लगा सकते हो आप OH, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट विल हैपन? What is this, student? Adenosine triphosphate. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका नेम आपने सुना होगा पहले। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जाना पहचाना नेम है कि नहीं है? ATP। Yes, sir. जिसको हम क्या बोलते हैं? Currency of energy, because these phosphodiester bond have very high energy. As you will break this bond, then you will get large amount of energy. इसलिए आपका ATP जो है एनर्जी का सोर्स कहलाता है। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। फर्क क्या है? ये मोनोफॉस्फेट था, ये डाइफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों ही क्या है स्टूडेंट्स? ये आपके न्यूक्लियोटाइड है। बात समझ में आ गई? ओके। अब मैं अगला टॉपिक बता रहा हूं आपको, पोली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से अब आपका क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो इस चीज को। मैं इसको क्या कह सकता हूं? मैं इसको शॉर्ट में A लिख लेता हूं, शॉर्ट में A। अच्छा, पहले जो मैंने A लिखे हैं, अभी वो स्लाइड में नहीं है, पहले A मैं सिंपल लिख रहा था एडिनोसिन के लिए, एडेनिन के लिए, ठीक है। फिर मैंने A लिखा, देखो 3 बार A है, इन 3 के मतलब समझेंगे। मैं 3 A लिख रहा हूं, तो इसका मतलब हो सकता है एडेनिन के लिए मैं लिख रहा हूं, हो सकता है मैं
एडिनोसिन के लिए लिख रहा हूं, और हो सकता है मैं एडिनोसिन मोनो या डाई या ट्राई, कोई सा भी हो सकता है, फॉस्फेट के लिए लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है? ये तो सिंपल क्या है स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन का बेस पेयर है, ये एडिनोसिन क्या है, ये आपका न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूक्लियोसाइड? मीन इट हैज नाइट्रोजन बेस, मीन एडेनिन प्लस sugar, adenine plus sugar, and nucleotide mean adenine plus sugar plus phosphate। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो 3 ए हो सकते हैं, सिंपल ए है मतलब ये एडेनिन है, और ये ए का मतलब न्यूक्लियोसाइड भी हो सकता है, और इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है। तो अब मैं इसको सिंपल ए लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मेरे पास न्यूक्लियोटाइड है। चलो एक बार और मैं इसको बता देता हूं, इधर देखेंगे, अब ध्यान से समझेंगे। मैं आपको आरएनए का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, आरएनए का स्टूडेंट, किसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं? आरएनए का। तो देखो मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया एडेनिन और इसको कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट मैंने, ध्यान से समझना, इसको आरएनए का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया राइबोस शुगर से। किससे कनेक्ट किया? राइबोस शुगर से। और मैं सिर्फ अभी क्या ले रहा हूं, कौन बताएगा मुझे, मैंने ये किसका स्ट्रक्चर बना दिया है, किसका स्ट्रक्चर बना चुका हूं मैं एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना चुका हूं, और वो न्यूक्लियोटाइड किसका है? एडेनिन का है। न्यूक्लियोटाइड क्यों है? नाइट्रोजन का बेस भी है, शुगर भी है, और फॉस्फेट भी है। क्लियर? अब मैं ध्यान से समझेंगे, मैं ले रहा हूं यूरेसिल, मैं ले रहा हूं इस बार यूरेसिल। स्टूडेंट ये बात आपने अच्छे से समझनी है। तो मैं इस यूरेसिल को जब ले रहा हूं, तो पहले तो मुझे ये बताओ मैं शुगर कौन सी रखूंगा यूरेसिल के लिए? राइबोज। मैं सिर्फ बॉन्डेड हूं कि मैं कौन सी शुगर रख सकता हूं? सिर्फ मैं राइबोज शुगर ही रख सकता हूं, यही वाली शुगर रख सकता हूं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, CH2 जो आपका क्या था, फॉस्फेट ग्रुप है, वो क्या है? O है, देन P है, डबल बॉन्ड O होता है, OH होता है, ये OH होता है, यही ग्रुप होता है कि नहीं होता है? तो अब ऐसे ही मैं मान लो यहाँ पर साइटोसिन ले रहा हूं, बस अब ये लास्ट ले रहा हूं मैं, ऐसे आप पूरी एक चेन बना के जा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, आप देख सकते हो आपकी बुक में, आपकी इसमें कितने पेज पर स्पेस है, वो आप उतने बना सकते हो। ये देखो ध्यान से समझ लो, आपको ये चीज अगर आपको समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? देखो अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, सारे के सारे जितने भी हैं। देखो अब क्या होगा, this is carbon number 1 2 3 4 and 5, again this is carbon number 1 2 3 4 and 5, similarly here 1 2 3 4 and 5. So carbon number 3 of sugar will interact with the carbon number, या or you can say phosphate which is attached to the carbon number 5. ये देखो ये क्या चीज निकल के गई, जल्दी बताओ अब ये क्या चीज है? वाटर। क्या है ये? वाटर। हाँ। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको हटा के डायरेक्ट मैं ये बॉन्ड बना रहा हूं, बाकी अब सब समझ लो हट गया। ऐसे ही यहाँ का तीसरा नंबर का जो है, ये पूरा OH चला गया इस H के साथ, और ये क्या हो गया, ये कार्बन नंबर 3 इस फॉस्फेट के थ्रू कनेक्ट हो गया। क्लियर है? मतलब इधर देखो आप, एडेनिन, उसके बाद क्या है? शुगर, उसके बाद क्या है? फॉस्फेट, फिर आया यूरेसिल, देखो ये यूरेसिल है, फिर कौन है? शुगर, फिर कौन है? फॉस्फेट,
यहां से देखो ना आप, ये देखो एडेनिन ये लिख लिया मैंने। अब मैं इसको एक शॉर्ट में समझा रहा हूं, अगर ये चीज आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आरएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अब बायो में आपने पढ़ा है इस तरह से या नहीं, या 10th में, वो देख लिए। ये रही एडेनिन, ठीक है। एडेनिन किसके साथ कनेक्ट है? शुगर के साथ, ठीक है। इस शुगर के साथ फॉस्फेट रह गया इधर की तरफ, फॉस्फेट अलग रह गया। इस शुगर के साथ कौन जुड़ गया? फॉस्फेट। देखो इस शुगर के साथ कौन जुड़ा? फॉस्फेट। फॉस्फेट के साथ कौन है? शुगर। इस शुगर के साथ कौन है? यूरेसिल। यूरेसिल आपका इधर रह गया। फिर इस शुगर के साथ कौन जुड़ गया? इसका फॉस्फेट। फॉस्फेट के साथ फिर कौन है? शुगर। और इस शुगर के साथ कौन है? फिर साइटोसिन। फिर कौन है? साइटोसिन। फिर कौन आएगा? फॉस्फेट। फिर कौन आएगी? शुगर। फिर तीसरा कोई बेस पेयर आ जाएगा, मान लो इस बार मैंने कह दिया ग्वानिन। ये चेन बढ़ती जाएगी ऐसे ही। हालांकि मैं इसको भी, एडेनिन को भी ऐसे लिख सकता हूं। आप एक बात देखिए ध्यान से स्टूडेंट, यहां आप ध्यान से देखिए कि ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड एक ये रहा, इसका न्यूक्लियोटाइड ये रहा, इसका न्यूक्लियोटाइड ये रहा। ये न्यूक्लियोटाइड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नाइट्रोजन का बेस पेयर शुगर और फॉस्फेट है कि नहीं है? ठीक है ना। नाइट्रोजन का बेस शुगर और फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट होगा कि नहीं होगा? अब मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात, मैं इस फॉस्फेट को, क्योंकि मैंने पीछे अभी आपको बताया कि मैं सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, मतलब गलत बोल गया। नाइट्रोजन का बेस शुगर फॉस्फेट ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है। यूरेसिल शुगर फॉस्फेट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। बेस शुगर फॉस्फेट क्या? न्यूक्लियोटाइड है। बेस शुगर फॉस्फेट यहां पर भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो मैं इस न्यूक्लियोटाइड को, इस पूरे न्यूक्लियोटाइड को भी उसके अल्फाबेट से इंडिकेट कर सकता हूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो ये जो बेस पेयर है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन का है। फिर ये न्यूक्लियोटाइड किससे कनेक्ट हुआ? यूरेसिल से। ये न्यूक्लियोटाइड किससे कनेक्ट हुआ? साइटोसिन से। और ये न्यूक्लियोटाइड किससे कनेक्ट हुआ? ग्वानिन से। तो स्टूडेंट ये आपका एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड, यूरेसिल का न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड, ये जो चेन बन रही है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है या नहीं है? पहले मुझे बताओ। पॉली, एक न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड पॉली है कि नहीं है? पॉली मीन न्यूमेरस है या नहीं है? जल्दी बताओ, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं है? ए का मतलब क्या है यहां समझ लो। ए का मतलब है इसका शुगर फॉस्फेट भी है। यू का मतलब क्या है? इसका शुगर फॉस्फेट भी अटैच होगा। साइटोसिन का मतलब क्या है? शुगर फॉस्फेट विल आल्सो बी देयर। ग्वानिन शुगर फॉस्फेट विल आल्सो बी देयर। बट मैं यहां सिर्फ उनके नेम लिख रहा हूं, शुगर फॉस्फेट वो नहीं लिख रहा। क्लियर है? Yes, sir. ये आपका आरएनए बन गया, ये चेन जो बन गई आपकी आरएनए बन गया। तो आरएनए क्या है आप बताओ जरा। दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दिस इज व्हाट स्टूडेंट? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और उसके अंदर बेस पेयर कौन कौन से होंगे वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिए। एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा, और इस बार कौन होगा? यूरेसिल होगा। तो मैंने यहाँ यूरेसिल लिया है। देखो एडेनिन भी ले रखा है आपका, ग्वानिन भी ले रखा है, साइटोसिन भी ले रखा है, और कौन होगा? यूरेसिल होगा। ये चेन जो बन गई ये आपकी क्या बन गई? आरएनए बन गया। ठीक है। अब इधर देखो डीएनए क्या होता है। बस डीएनए में दो डिफरेंस है। पहला एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इस बार यूरेसिल नहीं होता, कौन होता है? थाइमिन होता है। तो ये कैसी कोई चेन चल रही होगी, ठीक है ना। फिर एक और चेन आती है, एक और चेन ऐसी आएगी। ये तो देखो कौन सी थी? सिर्फ एक चेन थी। एक चेन का मतलब क्या? सिंगल था, ये तो सिंगल स्ट्रैंड था, एक ही इसकी टांग थी, ये मान लो। लेकिन यहां पर क्या होगा? थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, एक चेन और आएगी। और ये चेन क्या करेंगी? आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। क्या करेंगे? आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से स्टूडेंट ये अपने आप को कोइल कर लेंगे। क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? ये अपने आप को कोइल कर लेंगे। ऐसे जैसे ये मैंने बनाया, ये अपने आप को क्या कर लेंगी? चेन। ये जो बनाया मैंने, इसमें क्या है दोबारा समझ लीजिए भाई। मैं बना रहा हूं, एक चेन बना रहा हूं, ये वाली एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और दूसरी जो चेन बना रहा हूं मैं, मान लेते हैं मैं ये वाली बना रहा हूं,
तो थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये जो चेन जो मैंने बनाई, दिस इज डीएनए। तो डीएनए के 4 पॉइंट, पहला ये डबल स्ट्रैंड है, दूसरा इसमें थाइमिन होता है, तीसरा इसमें डीऑक्सी शुगर होगी। डीऑक्सी क्या होती है? शुगर। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यहां जो मैंने शुगर ली है स्टूडेंट, ये वाली, ये इस बार यहां पर H होगा, बस कार्बन नंबर 2 डीऑक्सी हो जाएगी, और यूरेसिल की जगह क्या होगा? थाइमिन होगा। तो ऐसी जो एक चेन बन के आएगी, चेन जो बन के आएगी, मैं यूरेसिल की जगह थाइमिन ले लूंगा और ऐसी ऐसी 2 स्ट्रैंड बनाऊंगा। ये जो ऐसी स्ट्रैंड बनी हुई है, आई विल टेक 2 स्ट्रैंड, ये वाली इस तरह की, और दोनों को हाइड्रोजन बॉन्ड से बांध दूंगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना? अब एक छोटी सी बात बता के मैं क्लास कंप्लीट कर रहा हूं। एक चार्गफ रूल होता है। क्या होता है? रूल है स्टूडेंट, और वो रूल क्या कहता है कि साइंटिस्ट थे ये, इन्होंने क्या पाया, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ग्वानिन क्या करता है? वही एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जब आप उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाता है। और जबकि ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए हमेशा ए के सामने टी आएगा, और टी के सामने हमेशा जी के सामने हमेशा सी आएगा। ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ए के सामने क्या आएगा, जल्दी बताओ? टी। और जी के सामने सी। सी। मतलब आपके सामने, चलो एक ये बना दी मैंने, ए टी टी सी जी ए, ये 1 स्ट्रैंड हो गया। दूसरी स्ट्रैंड में बताओ क्या क्या आएगा? डीएनए है ये, बताओ ए के सामने क्या लिखूं? टी। टी। टी के सामने ए। ए। यहां ए। हेयर, जी। जी। हेयर, सी। और यहां टी। टी। क्लियर है ना? तो इट वाज डीएनए, और ये भी आपका डीएनए था। लेकिन एक और बता दो जरा मुझे, मैं दोबारा से यही ले रहा हूं, ए टी टी सी जी ए, ये डीएनए है। आरएनए की अगर मुझे स्ट्रैंड लिखनी हो, व्हाट विल हैपन? ए के सामने टी लिखना चाहिए मुझे, यू। बट व्हाट आई टोल्ड यू, यू। टी और यू इंटरचेंज होते हैं, ध्यान रहेगा ना? ए के सामने क्या लिखूंगा मैं? यू। तो इसको यू ही मान लो आप। इसके सामने तो ए ही आता है, इसके सामने भी ए आएगा। सी के सामने जी, जी ऑपोजिट सी, और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा? यू। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है? यस सर। कितना को समझ में आया, जल्दी बताओ? सबको आ गया समझ में? तो आज बाकी के स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए भाई? तुम्हारी पहली क्लास में कितने स्टूडेंट थे फिजिक्स में? सर इंग्लिश की हुई थी 14। 14। यस सर। तो अब वो 3 भी चले गए। कौन 3 थे वो वहां से? Those who think I am very very good in chemistry,